Now let's come to the moment distribution method. After the force method, we'll be starting some of the important stiffness method. The moment distribution is one of the important, you can say that, stiffness method. If stiffness method, which is based on the stiffness criteria. Now, in the examination, they'll specify what method you have to apply. If they are not specifying, that you can apply any of the method, whichever you feel easy. ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू हैव प्रॉपर कंसंट्रेशन व्हाइल कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें अगर छोटा सा भी गलती हो गया तो यू विल बी एबल टू पे अ लॉट फॉर दैट, बिकॉज इसका क्वेश्चन जो आता है वो आता है 20 मार्क्स का. बहुत आराम से बहुत ध्यान से करना होता है इसका क्वेश्चन. नाउ this method is also known as Hardy-Cross method. So even if they are saying that calculate or solve this question by using Hardy-Cross method, then it means the same, that is you have to apply the moment distribution method only. Now, as I said that this method is based on the stiffness method. Now, what is stiffness? Stiffness is basically defined as the moment required for moment means the bending moment required for the unit rotation. That is, if you are rotating any particular element with respect to a certain point, then the moment required for a unit rotation, that is when the rotation is 1 unit, then in that case the bending moment that will cause this 1 unit rotation, that will be equal to stiffness, which is denoted by K. For example, if you take the example of this particular element, one more thing I want to tell you, that we will be like doing the conventional as well as the theoretical lecture together in this structure, not separately, because structure is altogether a combination of the theory as well as numerical. So I cannot part these things. You have to work it out together. तो हम साथ में लेके चलेंगे इसमें conventional and objective और theory पूरा सारा सब कुछ साथ में. ठीक है. Let's take the example of this particular beam. This is a beam which is a prop cantilever beam. There is a support, hinge support here. There is a fixed support here. This is a fixed end. Now, what exactly is happening is that, let's say that there is a moment of M is present here. There is a bending moment M is present here. You know that this is point A and this is point B. This is point A and this is point B. Then theta B is equal to, that is the rotation at this particular point, is equal to ml upon 4EI. This will be the rotation at point B. याद है ना, यहाँ P लगता था, यहाँ M लगता था, ml upon EI. उसी तरीके से this is ml upon 4EI. This will be the rotation at point B. This will be the rotation. Now in that case, if you will calculate M, then this M will be equal to 4EI divided by L into theta B. फाइन. थीटा भी आपको डायरेक्टली पता है, रोटेशन निकालना तो आता है, आपने डिफ्लेक्शन वगैरह का केस पूरा पढ़ रखा है, आपको रोटेशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स भी पता है, यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट. नाउ इन दैट केस एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन द रोटेशन एट एनी पॉइंट बिकम्स इक्वल टू 1 यूनिट, then in that case the bending moment will become equal to stiffness. That is, I can say that for this particular case, if this theta b become 1, then this m will become k. So in that case, this k will be stiffness, that is equal to 4EI divided by L. This will be the stiffness for this particular case. This is the case when one end is fixed, another end is being acted upon by a reaction, or you can say that the hinge support. समझ में आ रहा होगा. Fine. On the other hand, if you proceed to the next case, there is one more case. If the end is not fixed, rather the end is hinged, let's see that. If the case is something like that, that is, this end is now, let's say that this is hinged. And this is hinge or roller, whatever you can say that, for example. Okay. This is point A and this is point B, and now bending moment is acting at this particular point. This was case 1. This was case 1 and this is case 2. ठीक है. अभी आप जानते हो, in that particular case the rotation at point B is equal to theta B is equal to ml divided by 3EI. ये हमें पता है.
थीटा ए भी आप जानते हो, आपने पूरा ये डिफ्लेक्शन के केस में सब पढ़ा है. थीटा ए इज इक्वल टू ml अपॉन 6EI, ये सब हमने पढ़ा है. नाउ if theta b is equal to ml upon 3EI, in that case this m will be equal to 3EI divided by L into theta b. Now if this theta b is equal to 1, then this m will be equal to k. Then in that case this k is equal to 3EI divided by L. It means that we had two different stiffness depending upon the two different cases. Now what are the cases? Let's see that. As I told you, the first case is this case and the second case is this case. This end on which, this particular end on which the moment is applied, and ध्यान से समझना, on which the moment is applied, this end is known as near end. Near end जिसमें moment apply होता है, that end is known as near end. And the other end, is known as far end. Other end is known as far end. It means that this and this, these will be the near end, and this and this will be the far end. This will be the far end. Fine. So in that case, what we have just seen that if the far end is fixed, the condition number one, if the far end is fixed, then in that case the stiffness will be equal to 4EI upon L. ध्यान रखना. Second case, if the far end is hinged, that is, if this is hinged, then in that case the stiffness will be equal to 3EI divided by L. और थर्ड केस, if the far end is, सब कुछ far end के अकॉर्डिंग हो रहा है, is free, अगर वो free है, then in that case the stiffness will be 0. There will be no stiffness. समझ में आ रहा होगा. The near end and far end are basically calculated or seen depending upon the type of support. अगर वो फिक्स सपोर्ट है दूर वाले एंड में, कौन से किसके एस्पेक्ट में दूर वाला, जहां मोमेंट लगाया उससे दूर वाला, तो आपका 4EI अपॉन एन, अदरवाइज 3EI अपॉन एन, अदरवाइज 0. What is stiffness? Stiffness is basically equal to the moment that will produce a unit rotation. That is stiffness. समझ में आ गया. If there is any joint, for example, if this is joint and this is joint O, and this joint is being connected with different elements, that is, this is the element, this is another element, this is another element, this is another element. If this joint is being connected with different element, for example, this is fixed end, this is also fixed end, this is, let's say, hinged end, and this is, let's say, free end, then in that case you can say that if this is having different stiffness, for example, this is having I1 L1, this is having I2 length L2, this is having I3 length L3, this is having I4 length L4, then in that case the stiffness, for example, if you'll say that this is OA, this is OB, this is OC, this is OD, and this is any joint, ये अपना rigid joint है कोई, इस पे सारे element fixed है, rigid joint, then in that case the stiffness of OA plus the stiffness of OB plus the stiffness of OC plus the stiffness of OD, this total stiffness of all the member at joint O will be denoted by the summation of K. Summation of K मतलब अगर आपसे कहा जाता है what will be the total stiffness at point O, that is the joint O, then in that case the stiffness at joint O will be the summation of all the stiffnesses, that is the stiffness at for OA. Far end क्या है इसका? Fixed. तो stiffness क्या हो जाएगी? 4E I1 divided by L1 plus OB. फार एंड क्या है? इस पॉइंट से देख रहे हो ना, फार एंड क्या है, दूर वाला एंड क्या है, हिंज. क्या हो जाएगी? 3E I2 divided by L2. इधर आ जाओ. OC फार एंड क्या है, फ्री, स्टिफनेस क्या है, 0. OD फार एंड क्या है, फिक्स, स्टिफनेस क्या है, 4E I4 divided by L4. This will be the total stiffness at K, that is point O पे, joint O पे, the total stiffness होगा. This is the total
stiffness. Similarly, there is another term that is known as relative stiffness. Stiffness हो गया, summation of stiffness हो गया, अब relative stiffness. Relative stiffness. Relative stiffness is basically defined as the ratio of stiffness with 4e. When you will divide the stiffness with 4e, you will get the relative stiffness. For OA will be equal to, क्या होगा stiffness? Stiffness क्या है? 4e I1 divided by L1 divided by 4e. You will divide it. So you will get, this is I1 upon L1. When you will relative stiffness for this is be 3 by 4 I2 by L2. इसके लिए 0. इसके लिए I4 upon L4. These are 4e से डिवाइड कर देना, you will get the relative stiffness. तो stiffness हो गया, summation of stiffness हो गया, relative stiffness हो गया. Now let's come to another point, that is carry over moment and carry over factor. That is carry over moment and carry over factor. Carry over factor, ये क्या फर्क होता है इसको भी देख लेते हैं कि कैरी ओवर मोमेंट और कैरी ओवर फैक्टर में क्या क्या फर्क है. लेट्स सी दिस आल्सो. ठीक है, मैंने आपको बताया था मोमेंट अप्लाई होता है नियर एंड पे और आप स्टिफनेस चेक कर रहे होते हो तो आप कंसीडर करते हो फार एंड को. ठीक, कैरी ओवर मोमेंट की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब होता है इफ द मोमेंट इज अप्लाइड at near end, if the moment is applied at near end, then the moment developed this is developed at the far end. The moment developed at the far end, this will be carry over moment. This will be carry over moment, and the ratio of the carry over moment divided by the applied moment, this is known as the carry over factor. That is the moment that is being carry over divided by the moment that is being applied. This ratio is known as the carry over factor. Carry over factor. For example, if you are considering this particular case, this is the fixed end. ये fixed end हो गया. This is point A, this is point B. B पे लगा है hinge. इस पे आपने अप्लाई किया. You just applied a bending moment of M, and इस पे जो डेवलप हुआ, this is the bending moment in the same direction, that is MA. Then the carryover factor will be equal to MA upon M. This will be the carryover factor. समझ में आ गया? जो भी फैक्टर कैरी ओवर होके जाता है that is known as कैरी ओवर फैक्टर. दूसरा केस आपका क्या बन सकता था? दूसरा केस आपका ये हो सकता था कि यहाँ पे भी हिंज हो और यहाँ पे आपका कोई भी सपोर्ट हो जिसपे आपने एक बेंडिंग मोमेंट M लगाया है. That is you applied a bending moment of M. यहाँ पे कितना आएगा मोमेंट? 0. यहाँ पे मोमेंट नहीं डेवलप हो सकता ना, बिकॉज दिस इज पॉइंट हिंज पॉइंट, दिस इज पॉइंट B. तो हिंज पॉइंट पे M यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा. इसका मतलब इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0 अपॉन M. दैट इज इक्वल टू 0. It means that the carryover factor will only exist when the far end is fixed. And in that case, if the far end is fixed, then this MA will be equal to M by 2 divided by M. That is, the carryover factor will be 1 by 2. If the far end is fixed, then the carryover factor will be 1 by 2. इसको याद रखना आपको. If the far end is fixed, then the carryover factor is 1 by 2 for prismatic beam. Remember that this is for prismatic beam. Prismatic मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है. प्रॉपर्टी चेंज का मतलब ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है ना इसका एरिया चेंज हो रहा है. यहां से यहां तक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट. इफ द बीम इज नॉन प्रिज्मेटिक, देन व्हाट विल बी द केस. तब आप कहोगे कि भाई प्रिज्मेटिक का तो चलो ठीक है, दिख गया 1/2 सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, पर नॉन प्रिज्मेटिक का क्या होगा? तो लेट्स सी दैट नॉन प्रिज्मेटिक के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है.
नॉन प्रिज्मेटिक का पहला केस की अगर आप बात करते हो फर्स्ट केस की, तो नॉन प्रिज्मेटिक का फर्स्ट केस मतलब दिस इज फिक्स सपोर्ट, दिस इज फिक्स सपोर्ट, ये आपका बीम है। मान लो इसका L/2 लेंथ तक इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i है, उसके बाद ये जाके कम हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो जाती है। दिस इज 2i और i, ये हो गया आपका 2i मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हो गया i मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2। इस तरीके से अगर आपको केस दिया हुआ है, दिस इज फिक्स्ड, इफ यू आर अप्लाइंग अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ m एट दिस पर्टिकुलर एंड, दिस इज m which is the near end, then this is bending moment ma will be present here, this will be ma which will be present here. Here in that case the carryover factor that is equal to ma divided by m, this will be greater than 1/2. Remember that if the moment of inertia is like this, that is this is 2i and this is i, this ma upon m will be greater than 1/2. On the other hand, if you have the second case, that is you have the case like this, this is the fixed support and this is your beam. In this particular beam, यहाँ पे moment of inertia अभी पहले छोटा है and after that the moment of inertia increases to 2i. If the case is like this, that is this is i and this is 2i, this is L/2, this is L/2, this is again you are applying a moment of m which is causing the development of moment ma. In that particular case, the carryover factor that is equal to ma divided by m, this will be less than 1/2. Remember that. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फार एंड के पास वाला छोटा है तो कैरियोवर फैक्टर लेस देन 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉन प्रिज्मेटिक बीम से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है इसका। थर्ड केस में इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर बीम, इफ दिस इज द बीम व्हिच यू हैव, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, ये आपका फिक्स सपोर्ट हो गया, ये आपका जो जनरल आपका इन सपोर्ट होता है वो सपोर्ट हो गया, इस पे आपने मोमेंट लगा दिया, दैट इज यू हैव अप्लाइड अ मोमेंट ऑफ ma। और यहाँ पे बीच में कहीं देयर इज अ हिंज पॉइंट, देयर इज एन इंटरनल हिंज जॉइंट जो वीक करता है बीम को। ये पहला वाला डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, इस पे आ गया मोमेंट कैरी ओवर होके ma। बीम प्रिज्मेटिक है अभी ये, this is prismatic beam, this is ei is equal to constant, but this is a special case with a hinge. So in that case the carryover factor, this will be equal to ma upon m obviously, and this will be equal to a upon b directly, a upon b directly. So it means that this can be greater than 1, this can be equal to 1, and this can be less than 1 also, this can be anything, that is the carryover factor in that case can be anything. समझ में आ गया है, समझ में आ गया होगा। तो दीज कैन बी द केसेस ऑफ कैरी ओवर फैक्टर। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? स्टिफनेस पढ़ ली है अभी तक आपने, रिलेटिव स्टिफनेस पढ़ ली है अब तक आपने, कैरी ओवर फैक्टर पढ़ लिया है। नियर एंड जिसपे मोमेंट लगता है, फार एंड जिसपे मोमेंट जाता है। फार एंड जब जाएगा मोमेंट, जब वहां पे फार वाला एंड फिक्स होगा तो आधा चला जाएगा, अगर फार वाला एंड हिंज होगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंज पे कुछ जाता ही नहीं है। किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग टोटल स्टिफनेस आपकी एड ऑन करके आपको मिल सकती है, दैट इज हमने जो ओ पॉइंट पे निकाला था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम एंड व्हाट एग्जैक्टली द केस इज। नाउ if there is a rigid joint, there is a rigid joint O and which is having different members connected to it, and what you are doing is that you are applying an external moment on that particular joint, then what will happen? ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है, let's say that this is our joint O. This joint O has different members, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था, this is member and this is one of the member, this is another member and this is another member. These are the members which we have. This is, let's say this is fixed support, this is also fixed support, let's say that this is hinge support and this is free end O. अब ये पॉइंट आपका O है और ये डिफरेंट मेंबर्स हैं। मान लो जिसका लेंथ L1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये इसका I2 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया L2 है, ये I3 है और L3 है, ये I4 है और L4 है। इस तरह कुछ केस बन रहा है आपका,
ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस केस में क्या होगा कि इफ यू विल अप्लाई अ मोमेंट एट पॉइंट ओ, देन दैट पर्टिकुलर मोमेंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेंबर्स. अगर मैं यहाँ पे एक मोमेंट लगाता हूँ, दैट इज इफ आई एम अप्लाइंग अ मोमेंट ऑफ m नॉट एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट, दिस m नॉट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स. ये जितने भी मेंबर्स हैं सब में ये m नॉट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट इज इफ आई विल से दैट कि मैंने m नॉट यहाँ से लगाया है और इसको अलग अलग मैं कर देता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस m नॉट विल बी इक्वल टू, अल्टीमेटली विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. अब ये m1 m2 m3 m4 क्या है, जो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे. दैट इज द मोमेंट विच इज प्रेजेंट इन दीज पर्टिकुलर पार्ट्स. कैसे, इनको अलग अलग कर लेते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने अलग कर दिया यहाँ से, और ये मेरा अलग हो गया. दिस इज माई सेंट्रल पार्ट. ये मैंने चारों पार्ट अलग कर दिए हैं इसके इस तरीके से. दिस इज द केस विच आई हैव नाउ. दिस इज द हिंज सपोर्ट. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी हैव अप्लाइड अ मोमेंट m नॉट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इस पे आपने m नॉट लगाया था, ये आपने m नॉट लगाया था. इसका मतलब ये m नॉट का एक पार्ट यहाँ जाएगा, जैसे ही यहाँ जाएगा इसका अपोजिट पार्ट यहाँ आएगा. दैट इज लेट्स से दैट दिस इज m1, दिस इज m1. सिमिलरली इस m नॉट का एक पार्ट इधर जाएगा, दिस इज m2, और इसका अपोजिट पार्ट यहाँ आएगा, दिस इज m2. सिमिलरली दिस इज m3 और इसका अपोजिट पार्ट जाएगा, दिस इज m3. सिमिलरली दिस इज m4 एंड दिस इज अपोजिट पार्ट विल बी m4. तो सारे पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा केस आपका. यहाँ पे m1/2 जाएगा m, यहाँ से m1/2 जाएगा, यहाँ पे m4/2 जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं जाएगा. तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब आपका फार एंड हिंज होता है, सब फार एंड फिक्स होता है, तभी आपका मोमेंट आधा होता है. फार अगर हिंज होता है तो कितना हो जाता है, 0. फ्री है तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होना उसके अंदर. ठीक, तो जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि दिस m नॉट जो सबका समेशन होगा, दिस m नॉट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द जॉइंट्स. जितने भी जॉइंट्स में मूवमेंट आ रहा है सबका समेशन होगा. दैट इज दिस m नॉट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू दिस. फाइन, ये हो गया हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का अनदर पार्ट है, एक और पार्ट होता है जिस पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन factor. Now what is this distribution factor? Distribution factor is basically the ratio of the stiffness of any member, the stiffness of any member at a joint. The stiffness of any member at a joint, the joint must be rigid. The stiffness of any member at a joint divided by the total stiffness of all the members, divided by the total stiffness of all the members meeting at that joint. Meeting that joint. ठीक, अगर मुझे यहाँ पे इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर वन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल बी कि इसका स्टिफनेस डिवाइडेड बाय द टोटल स्टिफनेस, दैट इज k1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k, सबकी स्टिफनेस का टोटल. सिमिलरली अगर मुझे इसका निकालना है तो दिस विल बी स्टिफनेस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ k. इसकी स्टिफनेस आप जानते हो 4EI/L डिवाइड बाय द टोटल, सबको ऐड करके निकालोगे. इसकी स्टिफनेस आप जानते हो 3I/L क्योंकि हिंज है, डिवाइड बाय द टोटल स्टिफनेस सबकी ऐड करके निकालोगे. दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड द समेशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, द समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ऑल मेंबर्स, दिस इज इक्वल टू 1 ऑलवेज. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सबका टोटल करोगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए. ये सारी चीजें आपने बेसिक पढ़ ली. ठीक, बेसिक पढ़ने का मतलब आपने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक. सबसे पहले आपने पढ़ा था बेसिक, आपने ये पढ़ा था कि भाई स्टिफनेस होता क्या है. स्टिफनेस इज बेसिकली इक्वल टू मोमेंट व्हेन द रोटेशन इज 1 यूनिट. व्हेन द रोटेशन इज 1 यूनिट देन स्टिफनेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट. स्टिफनेस के बाद
आपने दो पार्ट निकाला था, स्टिफनेस था 4EI अपॉन एल, या फिर स्टिफनेस था आपका 3EI अपॉन एल, या फिर आपका था 0, डिपेंड करता था। जब आपका फार एंड, सब कुछ फार एंड के हिसाब से होता था, फिक्स होता था तो ये होता था, फार एंड आपका हिंज होता था तो आपका ये होता था, और फार एंड अगर फ्री होता था तो आपका ये होता था। इसके बाद आपने यहाँ पे चेक किया था, आपने रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट किया था। रिलेटिव स्टिफनेस जो था हमारा, रिलेटिव स्टिफनेस वाज इक्वल टू, जो भी आप स्टिफनेस निकालते हो, डिवाइड बाय 4 इंटू ई, 4 से डिवाइड करें तो रिलेटिव स्टिफनेस आपको मिल जा रहा था। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, वो आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर में अगर आपका फार एंड फिक्स होता था तो कैरी ओवर फैक्टर आपका निकल के आता था 1/2, और अगर फार एंड आपका हिंज होता था या फ्री होता था तो आपका कैरी ओवर फैक्टर निकल के आता था 0। बट द बीम शुड बी प्रिज्मेटिक। अगर बीम प्रिज्मेटिक नहीं थी तो उसके सेपरेट केसेस आपने देख लिए थे, हिंज का केस भी आपने देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब होता था द स्टिफनेस ऑफ एनी मेंबर डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ स्टिफनेस फॉर all the members at a joint, and the joint should be rigid. These are the basic points related to the Hardy cross or moment distribution method. Now let's start with the very basic thing, that is the method to draw the BMD. Method to draw the bending moment diagram using the stiffness method. यूजिंग स्टिफनेस मेथड, किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टिफनेस मेथड का यूज करके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। सबसे पहले आप कैसे करते हो, लेट्स सी दैट। वी विल टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। let's say this is the beam which we have, this is the fix. Obviously we are using these methods when the beam is indeterminate. अगर डिटर्मिनेट है तो इन सबकी जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप सोम वाले तरीके से निकाल लोगे। दिस इज लोड P which is acting at a point of, let's say that this is L/2, this is L/2, this is point A, this is point B, and this is point C. Fine. तो इसके लिए आपको you have to draw the bending moment diagram by using the stiffness method. अगर फोर्स मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकालना होता तो आप आराम से कर सकते थे। सबसे पहले आप रिजल्टेंट निकाल के रिएक्शन निकाल लेते, वो आप जानते हो कैसे करना आपको, अभी हमने किया हुआ है सारी चीजें। बट हमें यहाँ पे स्टिफनेस मेथड को यूज करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑल्सो यू कैन से दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। फाइन। The stiffness method ये कहता है, first of all what you have to do is that you have to break the beam into different spans. First of all, break the beam into different spans. Different spans मतलब different support के बीच में span होता है। यहाँ पे अगर आप इस बीम को देखते हो तो इसमें आपको एक ही span दिखेगा, that is AB, because the supports are A and B. अगर बीच में कोई और support होता तो you can break it into two different spans. First of all, you have to break the beam into different spans. डिफरेंट स्पैन में ब्रेक करने के बाद what you have to do is that in this particular case of stiffness method you have to analyze the beam separately by breaking it into two different parts, that is fixed end moment। fixed end moment diagram अलग से बनाते हो आप, उसके बाद लोड मोमेंट डायग्राम अलग से बनाते हो आप। जब लोड मोमेंट डायग्राम बनाते हो तो आपको बीम को कंसीडर करना होता है सिंपली सपोर्टेड। उसके बाद इन दोनों डायग्राम्स को आप कर देते हो सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक रख देते हो। कॉमन एरिया को, जो कॉमन होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, और जो बचा हुआ होता है वो आपका रिजल्ट हो जाता है। इट मींस दैट सबसे पहले आपको फिक्स एंड मोमेंट का डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको फ्री एंड मतलब आपको सिंपली सपोर्टेड एंड करके लोडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा देना है, जो कुछ बचेगा दैट विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर बीम, फॉर दिस पर्टिकुलर बीम यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स डायग्राम, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम।
फिक्स्ड एंड मोमेंट की अगर मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक सी पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपका फिक्स्ड एंड है मोमेंट, यहाँ पे आपने मोमेंट को फिक्स्ड एंड माना हुआ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कंसीडर सर्टेन फिक्स्ड मोमेंट वैल्यूज। तो फिक्स्ड मोमेंट वैल्यूज को हम सबसे पहले देखें। पहला केस हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट का ये होता है कि आपके पास बीम जो है आपकी, लेट्स से दिस इज योर बीम एंड दिस बीम इज हैविंग फिक्स्ड एंड लाइक दिस, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, and there is only a concentrated load that is present here at the center. Then in that case the fixed end moment will be, this will be m bar ab लिख लेते हैं, and this will be m bar ba. This is a and this is b. तो m bar ab अगर आप लिखते हो फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए, तो this m bar ab will be equal to, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, this is pl upon 8, और अगर आप m bar ba लिखते हो तो दिस विल बी पॉजिटिव का पीएल अपॉन 8, ये आपको याद करनी पड़ेगी, माइनस का पीएल अपॉन 8 एंड पॉजिटिव का पीएल अपॉन 8। सिमिलरली इफ यू गो विद द सेकंड केस, तो सेकंड केस के अंदर इफ यू गो विद द सेकंड केस, देन इन दैट केस द लोडिंग डायग्राम विल बी लाइक दिस, द लोडिंग डायग्राम विल बी like this will be the loading diagram, that is the UDL will be there, this is the UDL। अगर यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड लोड की जगह UDL प्रेजेंट है like this, and this is again the point A, this is again the point B, now in that case this m bar AB, this will be equal to, and this, let's say that this is W kilonewton per meter, so this will be minus का W L square divided by 12, and similarly this m bar BA will be plus का W L square divided by 12 if this is UDL. Fine. And if UDL is not present, concentrated load is present, but the concentrated load is not present at the center. Fixed end की बात कर रहे हो, उसलिए fixed end नहीं माना। मान लो the concentrated load is present here, somewhat here, in this particular point. The concentrated load P is present. Let's say that this is distance A, this is distance B. Now, this is point A and this is point B. If you want to calculate the fixed end moment m bar AB, this m bar AB will be equal to minus का PAB square divided by L square, total is L. This m bar BA is equal to, plus हो जाता है बस, PB, अब इधर से ले रहा हूँ, तो this is PB A square divided by L square, PAB square PB A square divided by L square। उधर से लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली नेक्स्ट केस, अगर आप और केसेस को देखते हो, देयर आर डिफरेंट केसेस, यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी केस बिकॉज़ द केसेस आर इंपॉर्टेंट। इफ दिस इज फिक्स्ड and the beam is like this and this is another fixed end, but the loading diagram is somewhat like this. Loading diagram is, let's say that this is UVL like this. If loading diagram is UVL which is present like this, then in that particular case if you want to calculate, this is point A, this is point B, in that case this m bar AB will be equal to minus का W L square upon 20 and this m bar BA will be equal to plus का W L square upon 20, minus का W L square and plus का W L square upon 20. This will be the case. Next, fifth case पे अगर आप जाते हो, if you'll go for the fifth case, the fifth case is somewhat like this. If this is the beam which you have, if this is the beam which you have, and on this particular beam there is a UVL that is present like this, this is present here at a distance of L by 2, this is also at a distance of L by 2, and this is W per meter of the load. Then in that case this m bar AB, this will be equal to minus के 11 upon 192 WL square, and this m bar BA will be equal to, सब नोट कर लेना ये, 5 upon 192 WL square, 5 upon 192 WL square. Fine. Sixth case अगर आप पढ़ते हो, next case पे अगर आप जाते हो, which is the sixth case. Now the sixth case is that if the beam is like this is a fixed beam which we have,
and the load is like this. This is UVL, and in this way the UVL is being present. In this case the UVL is present. The load is present like this. Again, this is point A and this is point B. So this m bar AB, if you want to calculate this, m bar AB will be equal to minus का 5/96 WL square, and this m bar BA, if you will go with, this is equal to plus का 5/96 WL square, plus का 5/96 WL square. नेक्स्ट अगर आप केस देखते हो, सेवेंथ केस देखते हो, if the beam is present like this, this is a fixed beam, and in this fixed beam, this is point which is the center. Let's say that in the center this bending moment is m naught, and this is point A and this is point B. Then this m bar AB, that is fixed end moment AB, will be equal to plus का m naught by 4. ये plus का m naught by 4 होता है. Similarly, m bar BA will also be equal to plus का m naught by 4. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी this will be same आता है. अगर ये सेंटर पे है तो इस तरीके से m naught by 4 m naught by 4 आएगा. But if this is not at the center, if this is a fixed beam, जितने केस बन सकते हैं डायरेक्टली भी वो सारे लिखा दे रहा हूँ आपको. But the m naught is not present at the center. M naught is present at a distance of, let's say that A from this end and B from this end. This is A end, this is B end. Then in that case, this m bar AB will be equal to m naught into B, 3A minus L, L is total length, divided by L square, and m bar BA will also be equal to m naught into A, 3B minus L divided by L square. So these will be the fixed end moment. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? First of all, what you have to do is that you have to separate the बेंडिंग मोमेंट्स. बेंडिंग मोमेंट सेपरेट करने का मतलब सबसे पहले आप लोडिंग को हटा दो और सिर्फ फिक्स्ड एंड को कंसीडर करके फिक्स्ड एंड मोमेंट बना दो. उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप फिक्स्ड एंड को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ लोड को कंसीडर करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो. दोनों को सुपर इंपोज कर दो, आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको समझाना था कि किस तरीके से आपको बीएमडी बनाना है, जो अभी आपने किया हुआ है. तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे? ये हमारे पास था अभी. सबसे पहले हम फिक्स्ड एंड कंसीडर करेंगे बस. वी विल कंसीडर ओनली फिक्स्ड. दैट इज, दिस इज द फिक्स्ड एंड व्हिच यू विल कंसीडर, दिस इज द फिक्स्ड एंड व्हिच यू विल कंसीडर, अनदर फिक्स्ड एंड. अब आप इन दोनों फिक्स्ड एंड को कंसीडर करके यू विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिर्फ इन दोनों फिक्स्ड एंड को. इसका मतलब दिस इज ए, दिस इज बी. तो m बार ए बी क्या होगा? दिस इज इक्वल टू माइनस का पी एल बाई 8. m बार बी ए क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू पी एल बाई 8. मोमेंट, एक्जेक्ट मोमेंट निकाल लिए. ठीक है. इसके बाद क्या करना होता है? ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल नाउ कंसीडर द बीम टू बी सिंपली सपोर्टेड एंड देन यू विल कैलकुलेट द मोमेंट विच आर द सिंपली सपोर्टेड मोमेंट. अभी आपने क्या करना है? सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर लेना है. इसको मान लो आपने सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर लिया इससे. बट आप सिंपली सपोर्टेड के साथ व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल कंसीडर द लोडिंग पार्ट, पी पार्ट. दिस इज एल बाई 2, दिस इज एल बाई 2. तो ये कितना आ जाएगा? पी बाय 2. ये कितना आ जाएगा? पी बाय 2, पी बाय 2, पी बाय 2. इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी. एम ए कितना है? 0. एम बी कितना है? 0. दिस इज पॉइंट सी. तो एम सी कितना होगा? ए बाई 2 इंटू एल बाई 2, पी बाय 4. ठीक. तो अभी मेरे पास क्या है? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी है, फ्री एंड मोमेंट्स भी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. कैसे बनाना डायग्राम? सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम, उसके ऊपर आपको सुपर इंपोज करा देना फ्री एंड मोमेंट डायग्राम. कंडीशन, कंडीशन क्या रखनी है वो ध्यान रखो. देखो, कंडीशन ये रखनी है कि जब आप व्हेन यू विल ड्रॉ द फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम, ध्यान रखना, इसको बहुत ध्यान समझना. फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो जो बीम के ऊपर बनाओगे, टॉप पे बनाओगे, जो आप बाहर की साइड बनाओगे, दैट विल बी नेगेटिव. बिलो बनाओगे, दैट विल बी
पॉजिटिव। बट अगर आप फ्री एंड बनाओगे, फ्री एंड में जो टॉप पे बनाओगे दैट विल बी पॉजिटिव और जो बॉटम पे बनाओगे दैट विल बी नेगेटिव। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले मान लो मुझे फिक्स्ड एंड बनाना है, उसके ऊपर मैं फ्री एंड सुपर इंपोज करूंगा। फिक्स्ड एंड का मतलब मेरा माइनस का PL/8 और PL/8 ऐसे करके जा रहा है। दिस इज PL/8 और यहां से यहां तक मेरा PL/8 है, माइनस का चल रहा है मेरा PL/8 स्टार्ट होकर यहां तक माइनस का PL/8 आता है। तो मेरा माइनस का बनाना है, तो मैंने बीम के ऊपर बना दिया। फिक्स्ड एंड मोमेंट टॉप पे नेगेटिव, टॉप पे आता है, नेगेटिव आ रहा था तो ऊपर बना दिया। देखो इधर मोमेंट क्या था मेरा, माइनस का PL/8। लोड कुछ है नहीं तो कांस्टेंट जाएगा, तो यहां तक कांस्टेंट आ गया। ये सब आप जानते हो, कंडीशन वही है, डिग्री वाली वही चलेगी। अभी यहां तक तो ये मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम है। अभी मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है फ्री एंड का। फ्री एंड का डायग्राम बनाना है। फ्री एंड के लिए मैंने आपको बताया टॉप पे बनाओगे अगर आप तो वो पॉजिटिव होगा। फिक्स्ड एंड का टॉप पे बनाया, ऊपर बनाया ना एक्सिस के, तो ये नेगेटिव है। बट अगर फ्री एंड का बनाओगे तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। देखो इधर इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे 0। तो पॉजिटिव कहां बनाना है, ऊपर बनाना। तो इसका मतलब पॉजिटिव विल गो लाइक दिस, this will go like this, PL/4, this will go like this, PL/4 से 0 तक, this is PL/4, this is PL/4। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा पॉजिटिव है। कॉमन वाले को हटा देना, कॉमन वाले को हटा देना मतलब ये वाला पोर्शन कॉमन है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमूव। इसका मतलब आप रिमूव करने की जगह व्हाट वी विल डू दैट, वी विल शेड द एक्चुअल पोर्शन, वी विल शेड द एक्चुअल पोर्शन को हम शेड कर देंगे। दैट इज द बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड BMD विल बी दिस, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर कॉमन वाला पोर्शन है तो इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल में देखना है तो दिस विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। दिस विल बी योर फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। दिस विल बी, सबसे पहले क्या किया, फिक्स्ड एंड मोमेंट का डायग्राम बना लिया। माइनस का PL/8 कांस्टेंट जा रहा है, यहां तक कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट जाएगा 1 डिग्री, सीधा सीधा समझ में आ गया। 0 डिग्री लोड है ना। उसके बाद आपने सिंपल सपोर्ट मान के लोडिंग डायग्राम बना, सुपर इंपोज कराया, कॉमन वाले को हटा दिया। याद रखना फिक्स्ड एंड मोमेंट जब ऊपर बनेगा तो वो नेगेटिव होगा, फ्री एंड मोमेंट वाला या सिंपल सपोर्ट वाला ऊपर बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से यू कैन डू दैट। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। In the next class, we'll practice some of the very good questions on this same concept. Till then, just revise this properly. Write it down each and everything which I have written here. So, this is A.S. Pandit signing off this session. Take care. Bye bye. Have a nice day.